السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں مہتاب ظہور کا تحریر کردہ ناول مرجا کے یوں کھلنا تھا، ایپیسوڈ نمبر 3۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عائشہ، تو اس کا نام عائشہ ہے، امپریسنگ، وہ دل ہی دل میں بولتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ اب کی بار اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ اسے پہلے کی طرح غائب نہیں ہونے دے گا، لیکن اس کا نام سننے میں اسے غلطی ہو گئی تھی۔ زن عائشہ کو دیکھ کر انشا تقریباً دیتے ہوئے اٹھی تھی اور اس کے گلے لگ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے یوں ملی تھی جیسے صدیوں کی بچھڑی ہوں۔ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دونوں کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ زن عائشہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر شرارت سے کہا تھا، میری تو خیر ہے، لیکن تم اپنی آنکھوں کا پانی سنبھال کر رکھو، ایک تو تمہارا میک اپ خراب ہونے کا خطرہ ہے، دوسرا رخصتی کے وقت یہ کام آئے گا۔ اس کی بات سن کر انشا روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ اس کے بعد دونوں کو جتنا وقت ملا تھا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جی بھر کے باتیں کی تھی۔ وہ ابھی بھی بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ انشا کی امی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زیش بیٹا، ڈرائیور کے ساتھ جا کر پھول اور گجرے تو لے آؤ، بارات آنے والی ہے اور کوئی گجرے اور پھول لایا ہی نہیں، میں اس وقت جا نہیں سکتی، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ آنٹی آپ پریشان مت ہوں، میں ڈرائیور کے ساتھ جا کر لے آتی ہوں، وہ انہیں تسلی دیتی ہوئی بولی تھی۔ مگر چند منٹ بعد وہ واپس آ گئی تھی۔ کیا ہوا، تم گئی نہیں؟ انشا اسے واپس آتا دیکھ کر بولی تھی۔ ڈرائیور نہیں ہے یار، وہ گاڑی لے کر کہیں گیا ہوا ہے، تم کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں کسی کو جانتی نہیں ہوں، کس کے ساتھ جاؤں؟ اچھا آؤ میں کسی کو دیکھتی ہوں، وہ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جاتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار کو ایک لڑکے کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ زیش کو جو سامنے دو لڑکے ہیں ان سے جا کر پوچھنا اخیار کون ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ، بابا کے دوست کا بیٹا ہے، میرا نام لینا، وہ ساتھ لے جائے گا۔ زن عائشہ کا تھوڑا انکمفرٹیبل لگ رہا تھا، مگر وہ دل پر پتھر رکھ کر ان دو لڑکوں تک پہنچ ہی گئی تھی۔ اخیار کس جانی پوچھتی، آپ میں سے اختیار کون ہے؟ اخیار کو عین اپنی پشت پر اسی آواز میں اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی جس میں تھوڑی گڑبڑ کر دی گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پلٹا تھا، وہ سچ میں اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اپنی حیرت کو دباتے ہوئے بامشکل بول پایا تھا، اختیار نہیں اخیار، اور میں ہی اخیار ہوں۔ اپنا درست نام بتا کر اب وہ اسے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دراصل مجھے انشا نے بھیجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جا کر گجرے اور پھول لے آؤں، ڈرائیور نہیں ہے ورنہ آپ کو زحمت نہ دیتی، وہ اسے اصل مقصد سے آگاہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں، وہ بولتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زن عائشہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اخیار نے اس سے پوچھا تھا، صرف پھول اور گجرے لینے ہیں؟ جی، وہ ایک لفظی جواب دے کر خاموش ہو گئی تھی۔ اخیار نے گاڑی چلاتے ہوئے چپکے سے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ چپ چاپ شیشے سے پار دیکھ رہی تھی۔ 2 سالوں میں وہ ان معمولی سی ملاقاتوں کو بھول گئی تھی اور 2 سالوں میں اخیار رضا اسے بول نہیں پایا تھا۔ اس نے اخیار کو اختیار کہا تھا، ورنہ اخیار کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اسے کچھ اور سمجھے گی۔ لیکن اخیار کو اپنی خوش قسمتی لگ رہی تھی کہ وہ رفولیے میں نہیں تھا۔ اس نے 2 سال بعد اسے دیکھ کر اسے مخاطب کر کے اس کی 2 سال پہلے والی خواہش پوری کر دی تھی جو ایک بار اس نے زن عائشہ کو ہسپتال میں دیکھ کر کی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اسے چپ دیکھ کر اچانک اس کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر وہ خود ہی سوال پر پچھتایا کہ نام تو پتا تھا، کچھ اور پوچھ لیتا۔ زن عائشہ وہ شیشے کے پار بھاگتے مناظر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اوہ ہو، تو اس کا نام عائشہ نہیں زن عائشہ ہے، میں نے اس کا نام غلط سنا تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ آپ انشا کی کیا لگتی ہیں؟ اخیار نے ایک اور سوال داغا تھا۔ میں اس کی دوست ہوں۔ اب بھی اس نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ انشا کو میں بھی کافی عرصے سے جانتا ہوں، لیکن اس کے فرینڈ سرکل میں کبھی دیکھا نہیں ہے میں نے آپ کو، جو کہ سراسر جھوٹ تھا۔ انشا سے 2-3 بار ہی اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ 2 سال سے ہم دونوں بہت کم ہی ملتی ہیں، اس لیے شاید آپ نے مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ وضاحت دیتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے، جب آپ اس سے زیادہ ملتی تھی تب میں نے آپ کو کیوں نہیں دیکھا؟ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے اخیار نے آخری جملہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ جی، کس چیز کا افسوس ہے آپ کو؟ باہر بھاگتے مناظر رکے تھے تو اس نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھ نہ آنے پر سوالیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی جانب دیکھنے پر اسے احساس ہوا تھا کہ ساتھ بیٹھا شخص وجاہت کا شاہکار تھا۔ آدھے چاند کی طرح مڑی ہوئی پلکیں، گہرے سیاہ رنگ کی بھویں، ہلکی ہلکی داڑھی، بے شک اللہ نے اسے فرصت میں بنایا تھا اور سفید رنگ اس پر ضرورت سے زیادہ جچتا تھا۔ اخیار اس کا سوال سن کر گرایا تھا۔ اسے اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تھا۔ آپ انشا سے آخری 2 سالوں میں بہت کم ملی ہیں نا، اس بات کا افسوس ہے مجھے، وہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سنجاتے ہوئے بولا تھا۔ مگر اس کی زبردستی کی مسکراہٹ زن عائشہ کو اتنی پیاری لگی تھی کہ بے اختیار اس کے دل نے ماشاء اللہ کہا تھا۔
اسے دیکھتے ہوئے زنائشہ کے دل میں ہلکا سا عکس ابھرا تھا۔ اسے یوں لگا تھا کہ وہ اس شخص سے مل چکی ہے، مگر اسے اس شخص کے دھندلے سے عکس کے سوا کچھ یاد نہیں تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شخص یاد رہتا ہے اور وقت، موقع اور ملاقات بھول جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور اخیار نے آج سگنل پر گاڑی روک کر ادھر ادھر نظریں نہیں دہرائی تھی۔ وہ زنائشہ سے پوچھنا چاہتا تھا آخر وہ 2 سال انشا سے بہت کم کیوں ملی، مگر اخیار نے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ پھول اور گجرے لینے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے کہ اخیار کا موبائل بجا تھا۔ ہسپتال سے کال تھی، اس لیے اس نے کال کاٹنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ وعلیکم السلام، جی کہیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اگر ایمرجنسی کیس ہے تو ڈاکٹر نائلہ سے کہے اٹینڈ کرے انہیں۔ اس میں پریشان ہونے والی یا مجھے کال کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ فون کان سے لگائے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سے زنائشہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور وہ ڈاکٹر ہے۔ کب گئی ہیں ڈاکٹر نائلہ اور کس کی اجازت سے گئی ہیں؟ وہ ایک دم ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ ایک دن کے لیے بھی آپ لوگ سب کچھ مینج نہیں کر سکتے؟ اور ڈاکٹر نائلہ کو اس بات کی تنخواہ نہیں دی جاتی کہ وہ جب چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ کے لیے چلی جائیں؟ انہیں کہیں اگر ان کی مصروفیات زیادہ ہے تو ہمیشہ کے لیے چھٹی لے لے۔ میرے ہاسپٹل کو ویسے بھی ایسے نان سینس اسٹاف کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب جائیں اور ڈاکٹر ریبا کو ان کے کوارٹر سے بلا کر لائیں اور انہیں کہیں پیشنٹ کو اٹینڈ کرے اور مجھے انفارم کرنا ہے ساری صورتحال سے۔ کال کاٹنے کے بعد اس نے نہ جانے کیا بربراتے ہو موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا تھا۔ زنائشہ اس کی بربراہٹ تو نہیں سن پائی، مگر اس نے چپکے سے ایک نظر اس پر ضرور ڈالی تھی۔ باقی کا سفر خاموشی سے کٹ گیا تھا۔ نہ ہی زنائشہ کوئی بات کر پائی تھی اور نہ ہی اخیار چاہ کر بھی مزید اس سے کوئی سوال پوچھ سکا تھا۔ اخیار کو 2 سال پہلے اس کی ہر ملاقات کے کپڑوں کے رنگ تک یاد تھے اور اسے اخیار ہی یاد نہیں تھا۔ وہ گھر کے بالکل سامنے پہنچ جائے تھے۔ زنائشہ گجری اور پھول لے کر اترنے لگی تھی کہ اخیار نے آواز دی تھی، سنیے جی۔ وہ اس کی آواز سن کر پلٹی تھی۔ کچھ نہیں۔ اخیار کے دل میں اچانک اس کی کلائیوں میں گجرے دیکھنے کی خواہش جاگی تھی اور وہ اس سے یہ کہتے کہتے رک گیا کہ وہ بھی گجرے پہنے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ برا نہ مان لے یا اس کے بارے میں کچھ برا نہ سوچنے لگے۔ اس کے کچھ نہیں کہنے پر زنائشہ رکی تھی، مگر پھر چپ چاپ کہے بغیر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ بارات کے آنے تک تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ لڑکیاں پھول اور گجرے لے کر انٹرفیس میں پر کھڑی تھی۔ زنائشہ انٹرفیس پر کھڑے ہونے کے بجائے انشا کے ساتھ ہی کمرے میں رہی تھی۔ اخیار کی نظروں نے اسے کئی بار ڈھونڈا تھا، مگر اسے کہیں نظر نہ آئی تھی۔ انشا کو اسٹیج پر بٹھانے کے بعد زنائشہ کارنر والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کے ٹائم پر بھی اس نے بے رغبتی سے چند لقمے کھائے تھے۔ جب زنائشہ کھانا کھا رہی تب اخیار نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن اس کے بعد اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ زنائشہ انشا کے اصرار کے باوجود رخصتی تک نہیں رک سکی تھی۔ انشا نے بھی اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے زیادہ اصرار نہیں کیا تھا اور پھر ڈرائیور سے اسے گھر چھوڑ گیا تھا، اور اخیار کے دل میں یہ خواہش دبی رہ گئی تھی کہ وہ اس سے کچھ بات کرتا، اس کے بارے میں پوچھتا۔ وہ اسے ڈھونڈنے سے کہیں نہیں ملی تھی اور اب اسے جی بھر کس بات پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ آخر اس نے رش کم ہونے کا انتظار کیوں کیا۔ اسے وہ یہی لگا تھا کہ سال پہلے کی طرح وہ غائب ہو گئی تھی۔ کیا جان لیے لیٹ ہی جائے گی، مگر اسے غلط لگا۔ چند دن بعد اخیار معمول کے مطابق ڈیوٹی پر تھا۔ ہاسپٹل کا راؤنڈ لگانے کے بعد وہ ویٹنگ ایریا کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اسے یوں لگا تھا کہ اس نے زنائشہ کی جھلک دیکھی تھی، مگر وہ اس کا وہم ہی ثابت ہوا تھا کیونکہ وہ لڑکی زنائشہ نہیں تھی۔ اپنے آفس میں جا کر بیٹھنے کے بعد اس نے سر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا تھا۔ بس اسی بات کی کمی تھی۔ پہلے تو مجھے ایسے وہم نہیں ہوتے تھے، اب وہ بھی ہونے لگے ہیں، وہ بے بسی سے سوچ کر رہ گیا تھا۔ ہاسپٹل سے فارغ ہو کر جب وہ گھر پہنچا تھا تو گھر کی سبھی خواتین اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ فریش ہو کر اس نے کھانا کھایا تھا اور اپنے بابا اور چچا کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں نیوز دیکھنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ ساری خواتین وہی جمع ہو گئی تھی۔ دادی نے اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر چند تصویریں رکھی تھی، ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو تم۔ دادی نے تصویروں کی جانب اشارے کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں دادی، آپ مجھے میری من پسند کار دلانے والی ہیں؟ وہ ناسمجھ بنتے ہوئے تصویریں اٹھائے بغیر بولا تھا۔ ابھی تو تم لڑکی پسند کرو، شادی کے بعد تمہیں تمہاری من پسند کار بھی دلا دوں گی، اسے یقین دلاتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار نے ٹیبل پر پڑی تصویریں اٹھائی تھی، ایک ایک کر کے اس نے ساری تصویریں دیکھی تھی۔ اس کے لاشعور نے کہی تھا کہ شاید ان تصویروں میں انشا کی دوست کی بھی ہو۔ جو تصویر مجھے پسند کرنی تھی وہ تو ان تصویروں میں ہے ہی نہیں، وہ مایوسی سے دھیمی آواز میں بولا تھا۔ بتاؤ کون سی اچھی لگی ہے تمہیں؟ فائقہ چچی نے انتہائی لاڈ سے پوچھا تھا۔ جی مجھے تو ساری اچھی لگی ہیں، وہ انتہائی معصومیت سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر منت اور واران نے بتیسی نکالی تھی جو دادی کی ایک گوڑی پر اندر چلی گئی تھی۔ بیٹا اب سب کے ساتھ تو تمہاری شادی نہیں کرنی ہے، کسی ایک کا بتاؤ، اس کی ماں بھی سمجھانے والے انداز میں بولی تھی۔ امی سچ کہہ رہا ہوں، ساری اچھی ہیں، یقین نہیں آتا تو آپ خود دیکھ لیں، سب کی ناک بھی انسانوں والی ہے، آنکھیں بھی سب کی بالکل ٹھیک ہیں، کسی کے پیدائشی کٹے ہوئے ہونٹ بھی نہیں ہیں،
वो तस्वीरों पर तफसीली अंदाज में तज्जिया करते हुए बोला था, जबकि माँ, दादी और चाची दांत पीस कर रह गई थी। अम्मी, आप भाई की बात का मतलब ही नहीं समझी हैं। वो जो कह रही है ना कि उन्हें सब पसंद आई है, उसका मतलब है कि उन्हें कोई भी पसंद नहीं आई। मन्नत ने मामला हल करते हुए समझदारी से वजाहत की थी। दादी, वैसे मन्नत की बात का ये पहलू गौर तलब है, हो सकता है ऐसा ही हो। वो इस अंदाज में बोला था जैसे खुद तो वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं। अखियार हम लोग सीरियस हैं। माँ ने इसकी तरफ देखते हुए कहा था, अम्मी मैं अभी शादी नहीं कर सकता। जहाँ आप सब ने इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा सा इंतजार और कर लें। अब की बार वो बोला था तो इसके लहजे की संजीदगी ने सबको चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। वो उन्हें वहीं बैठा छोड़कर कमरे में चला गया था। अगले 2-3 दिन में वो दादी की बात बिल्कुल भूल गया था। उसे अस्पताल से लौटे थोड़ी देर ही हुई थी कि दादी उसके कमरे में आई थी। अखियार बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दादी बैठ के किनारे बैठते हुए बोली थी। जी दादी, कहे, मैं सुन रहा हूँ। वो अपने सामने खुले लैपटॉप को बंद करते हुए बोला था, बेटा, हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक साथी की जरूरत होती है, जिसके साथ सब कुछ साझा हो, जिसके साथ अपने दर्द सुख बांटे जा सके, जो हमदर्द हो। एक साथी की जरूरत तो इंसान को हर उम्र में रहती है। वो बोलते हुए इसके चेहरे को बगौर देख रही थी। जी दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इंसान को हर उम्र में साथी की जरूरत होती है। आपकी नज़र में कोई है क्या? वो उलझते हुए पूछने लगा था और दादी ने मोहब्बत से इसके दोनों हाथ थाम लिए थे। हाँ बेटा, मेरी नज़र में है कोई। खानदान भी बहुत अच्छा है। तुम बताओ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? वो उम्मीद भरे लहजे में पूछ रही थी। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आप बाबा और चाचू से और बाकी घर वालों से पूछ ले, उन्हें कोई एतराज़ ना हो। उसकी बात सुनकर उनका चेहरा खिल उठा था। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो बाकी को क्या एतराज़ होगा? और वैसे भी जिसे जिंदगी गुजारनी है उससे मसला नहीं है, तो बाकी कौन होते एतराज़ करने वाले? वो दबंग अंदाज में बोली थी। बात तो आपकी ठीक है, जिंदगी आपने गुजारनी है। जब आपको एतराज़ नहीं है तो बाकियों को क्यों हो? इसकी बात सुनकर दादी ने मोहब्बत से इसके थामे हुए हाथ एकदम छोड़े थे और माथे पर कई बल डाले हुए बोली थी, मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि हम में से कोई भी आपकी शादी पर एतराज नहीं करेगा। जिंदगी में पहली बार दादी को ख्याल की मुस्कुराहट जहर लगी थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पुत्र जी, मैं अपनी नहीं तुम्हारी शादी की बात कर रही थी, और तुमने अपनी नहीं तुम्हारी शादी की बात सोच भी कैसे लिया कि मैं इस उम्र में शादी करूंगी? वो माथे पर बल डाले बोली थी। आप जो कह रही थी कि हर उम्र में साथी की जरूरत होती, तो मुझे लगा आप अपनी बात कर रही। अख्तियार ने इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया था, जबकि दादी उसे घूर कर रह गई थी। चलो, अब तो पता चल गया ना कि तुम्हारी शादी की बात हो रही है, तो बताओ तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? आज दादी उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। दादी, मैं अभी नहीं कर सकता शादी, वो बेचारगी से बोला था। वजह? दादी ने खतरनाक तेवर से पूछा था। दादी, आप समझने की कोशिश करें ना, वो बेचारगी से बोला। तुम समझाने की कोशिश करोगे तो समझूंगी। दादी एक बार फिर से मोहब्बत से हाथ थामते हुए बोली थी। दादी, मैं, वो बोलते बोलते बात अधूरी छोड़ गया था। तुम किसी से मोहब्बत करते हो? दादी ने इसका अधूरा जुमला सवाली अंदाज में पूरा किया था। मोहब्बत का तो नहीं पता, लेकिन उसके अलावा किसी का ख्याल ही नहीं आता है। वो नजर नहीं आती और किसी और की जानिब नजर उठती ही नहीं, और अगर गलती से उठ भी जाए तो टिकती नहीं है। हम दोनों के दरमियान ना कोई फसूल का वादा नहीं है, और भला कोई वादा हो भी कैसे सकता है? उसे तो मेरे जज्बात का पता तक नहीं है, और मुझे बस इतना पता है कि जिंदगी सिर्फ उसी के साथ गुजारने की चाह है, और अगर अल्लाह का इरादा उससे मेरे नसीब में लिखने का नहीं है तो ये जिंदगी उसके बगैर तो गुजारी जा सकती है, लेकिन किसी और के साथ नहीं गुजारी जा सकती। वो दादी की गोद में सर रखते हुए मध्यम आवाज में बोला था। कौन है वो? दादी ने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा था। उनके पूछने पर अखियार ने बगैर कुछ छुपाए सब कुछ उन्हें बता दिया था। बेटा जी, इस तरह तो तुम होगे अपनी मोहब्बत में कामयाब। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो तो कैसे मिलेगी वो? पहले वो तुमसे मिलती थी, अब तुम्हें उससे मिलना चाहिए। दादी तंज करते हुए आखिर पर उसे नसीहत कर रही थी। दादी, आप भी ना, अब आप ही बताएं, मैं दुआएं करने के अलावा क्या कर सकता हूँ? सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। वो हनूस इनकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था। दादी, एक बात तो बताएं, जब दादा आपसे मिले थे तो उन्हें देखते ही आपको उनसे मोहब्बत हो गई थी? इसकी बात सुनकर दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी और कमरे के पास से गुजरती मन्नत और बरहान के कदम थमे थे। वो मैक्रोनी की प्लेट हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई थी। अखियार उन्हें देखकर मुस्कुराया था। दादी, हमें भी सुनना है आपकी और दादा की मोहब्बत का किस्सा। वो दोनों काउच पर बैठते हुए बोली थी। पहले कितनी बार सुन चुकी हो तुम दोनों? दादी उन्हें याद दिलाते हुए बोली थी। लेकिन दादी, हर बार हमें कोई नई बात पता चलती है जो आपने पहले नहीं बताई होती। वो एक दूसरे को देखते हुए फिर दादी की जानिब देखते हुए बोली थी। अच्छा ठीक है, सुन लो तुम दोनों भी, लेकिन आधी मैक्रोनी मैं खाऊंगी। दादी ने दोनों के दरमियान बड़ी प्लेट को देखते हुए कहा था।
मन्नत और बारान दोनों के माथे पर बल नमूदार हुए थे। दादी, ये मैक्रोनी वाला कोई मजाक नहीं है, मन्नत तराक कर बोली थी। अच्छा, फिर वो सामने दरवाजा है, दोनों चलती फिरती नजर आ यहाँ से, वो रौब से बोली थी, जबकि दादी जानती थी कि खाने के मामले में वो दोनों उनके किसी रौब का कोई असर नहीं लेती थी। ठीक है, पहले किस्सा सुनाए, फिर आधी प्लेट आप। बारान दादी ख्वास्ता बोली थी। अखियार इनकी बहस सुनकर मुस्कुरा रहा था। ये हुई ना बात, दादी की आंखें चमकी थी। दादी, अब आप मुझे बताएं ना जो मैंने पूछा है। उनका मसला हल होता देखकर अखियार ने दादी को अपनी जानिब मतवज्जा किया था। ये मामला तो मैं आज तक हल नहीं कर सकी कि मुझे उनसे मोहब्बत कब हुई। दादी, मुझे तो लगता है कि आपको उनसे पहले नसर की मोहब्बत हुई थी। मन्नत ने मैक्रोनी का चम्मच मुंह में डालते हुए अपना ख्याल पेश किया था। जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो सिर्फ पहली नजर पर नहीं बल्कि हर नजर पर नए सिरे से मोहब्बत का एहसास होता है। तब पहली नजर की मोहब्बत बेमायनी सी हो जाती है। और वैसे भी किसी से मोहब्बत कब हुई ये कब याद रहता है, या तो बस ये रहता है कि किसी से मोहब्बत है। कब से है, क्यों है, कितनी है, इसका हिसाब किताब नहीं रखा जाता। मोहब्बत रियाजी थोड़ी है जिसमें हिसाब किताब किया जाए। दादी इन तीनों को समझाते हुए बोली थी। अखियार इनकी बात सुनकर खासा मुतासिर हुआ था। मन्नत और बारान के चेहरों से भी लग रहा था कि दादी से सारे इख्तलाफ एक तरफ, लेकिन उनकी कुछ बातों से वो वाकई बहुत मुतासिर होती थी और अब भी वो खुद को मुतासिर होने से रोक नहीं पाई थी। दादी, मुझे आपकी समझ नहीं आती और ना ही आपकी और दादा की कहानी की। जब जब मैं सुनता हूँ आपके बयान बदले होते हैं। कभी आप बताती हैं कि आपकी लव मैरिज हुई थी और कभी आप कहती हैं कि आपकी अरेंज मैरिज थी। आज मुझे तफसील से समझाएं कि आखिर माजरा क्या है। अखियार के सवाल पर बारान और मन्नत दोनों खिलकर हंसी थी। वो दोनों भी एक अरसे तक ये मामला हल करने में नाकाम रही थी कि आखिर दादा दादी की लव मैरिज थी या अरेंज। इस दास्तान से वाकिफ थी, मगर फिर भी वो दोबारा से दादी, लेकिन अब वो मुंह से सुनना चाहती थी। ये नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी वाली डाइन मैं ही हूँ। खैर, तो उन्होंने खैरात की तो मेरे घर वालों को बुलाया और जबरदस्ती मुझे भी साथ लाने को कहा। जब मैं तुम्हारे दादा के घर गई तो उन्होंने वहां मुझे देख लिया, लेकिन बदकिस्मती से मैं उन्हें नहीं देख पाई थी। और मेरी मरहुमा सास को तो पहले ही यकीन था तो हुआ कुछ यूं कि 1 महीने बाद हमारी शादी हो गई और निकाह के बाद मुझे पता चला कि जो मेरे दिल में था वही मेरे नसीब में था। तुम्हारे दादा मुझे अक्सर यूनिवर्सिटी वाली डायन कहकर तंग किया करते थे और मेरी मरहुमा सास भी अपने मरने से पहले तक मेरे सामने मेरी इतनी बुराइयां किया करती थी कि कभी कभार तो मुझे अपना आप वाकई चुड़ैल लगता था। लेकिन ना कभी तुम्हारे दादा ने घर पर किसी को ये बात बताई थी कि मैं यूनिवर्सिटी में उनकी कोलीग थी, ना मैंने कभी जिक्र किया था। तो इस तरह हमारी लव मैरिज भी थी और अरेंज मैरिज भी। दादी बीते वक्त की यादों को ताज़ा करते हुए बोली थी। लेकिन दादी, अगर दादा की जगह कोई और होता तो आप तो दादा से मोहब्बत करती थी, फिर क्या करती आप? अखियार ने संजीदगी से इनसे सवाल किया था। वो उनसे जवाब चाहता था। मन्नत और बारान भी उनके जवाब की मुंतजिर थी। बरखुरदार जो दिल एक दूसरे से जोड़ सकता है, उसके लिए नसीब एक दूसरे से जोड़ना बड़ा मुश्किल है क्या? मैं जानती थी कि अगर अल्लाह ने उसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाली है तो उसे मेरे नसीब में भी जरूर लिखेगा। दादी इंतहाई यकीन से बोली थी। इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अखियार मुस्कुराहट दबाते हुए बोला था। किसने कहा मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रही थी? कुछ भी बगैर मेहनत और कोशिश के नहीं मिलता। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें हमें अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। बेशक हर चीज़ पहले लिखी जा चुकी है, हम सब की कहानियां बहुत पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारी कहानी में कहीं ये लिखकर खाना खाली छोड़ दिया गया हो कि इस बंदे को वही मिलेगा जो वो अल्लाह से मांगेगा। और अगर खाना खाली नहीं भी कुछ लिखा हुआ भी है तो तुमने सुना नहीं कि दुआएं नसीब बदल देती हैं? यकीन मानो दुआएं वाकई नसीब बदल देती हैं। दुआएं नामुमकिन को मुमकिन बना देती हैं। दादी अखियार के चेहरे को देखते हुए बोली थी। वो समझ सकता था कि वो उसे समझाना चाह रही थी, लेकिन फिर ये हीर रांझा, ससी पन्नू, सोनी महवाल, शीरी फरहाद, ये सब क्यों नहीं मिले? इस बात की क्या गारंटी है कि ये लोग वाकई वजूद रखते थे और इनके किस्से भी बिल्कुल दुरुस्त थे और अभी तक सब कुछ वैसे ही बयान किया जाता है जैसा उनकी जिंदगियों में हुआ था। ये भी तो हो सकता है कि उनका वजूद ही ना हो, और अगर है भी तो ये भी तो हो सकता है कि ये लोग दास्तानें नस्ल दर नस्ल चलते हुए अपना असर रंग खो चुकी हों। लेकिन दादी, वो उनके मिसार और वो मन्नत अभी दलील से उन्हें कॉल करने ही लगी थी कि दादी उसकी बात काटते हुए बोली थी। भाई मैं नहीं मानती इन किस्सों को, कोई जबरदस्ती है क्या? असल में मैं अब दादी को दलील देने लगी हूँ तो दादी मेरी दलील कैसे मान सकती है? मन्नत की बात सुनकर दादी समेत अखियार और बारान दोनों मुस्कुराए थे, जबकि मैक्रोनी की हाली प्लेट देखकर दादी के होंठ फौरन सिकुड़े थे।
दादी सच में पता नहीं चला, आपकी बातों में हम दोनों इस कदर खो गई थी कि हमें पता ही नहीं चला और हमने सारी मैकरोनी खा ली। वो दोनों इंतहाई मासूमियत से बोली थी। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ किचन में। दादी ने आराम से दोनों को किचन की दावतनामा दिया था। दादी, वो दोनों एहतजाजन बोली थी, ठीक है हम अभी दादी को मैकरोनी बना देते हैं, हम नहीं बना के देंगे तो आखिर कौन बना के देगा। चलो आओ बारान। मन्नत का एकदम बदलता लहजा देखकर दादी ने आंखें सुकेर कर उसे देखा था। अखियार उन्हें इनके हाल पर छोड़ता बेड पर लेट गया था, जबकि वो दादी पोती किचन की जानिब चल दी थी। दादी आराम से किचन में कुर्सी पर बैठकर दोनों की हरकतों सकनात मुलाहजा फरमा रही थी। दादी, आपको पता है हमारी क्लास की एक लड़की की पहले सेमेस्टर की CGP 3.4 थी और इसकी दादी ने उसे इस खुशी में कार लेके दी है। मैंने तो उसे बड़े फख्र से कहा कि बारान और मेरी दादी बहुत अच्छी है और हम तो दोनों अलग अलग कार लेने की बजाय एक ही कार लेंगी दादी से। मन्नत दादी के सामने मैकरोनी की प्लेट रखते हुए इंतहाई अदब से बोली थी। उन्हें एक पल में फरमाबरदारी की सारी वजह समझ आ गई थी। 2 दिन बाद तुम लोगों के यूनिवर्सिटी में जो फंक्शन है मैं उसमें इनवाइटेड हूँ, मुझे जरूर मिलवाना, इस बच्ची से मुबारकबाद दूंगी उसे। दादी सुकून से मैकरोनी का चम्मच मुंह में डालते हुए बोली थी। लेकिन आप क्यों इनवाइटेड है? वो दोनों यकसुबान होकर बोली थी। तुम दोनों बोल रही हो कि मैं इसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, HOD और फिर VC रही हूँ, ऐसे में मेरा इन्वाइटेड होना आम सी बात है। वो आराम से उन्हें याद दिलाते हुए बोली थी। मुझे बच्ची से मिलवाना मत भूलना। वो प्लेट उठाते हुए किचन से निकल गई थी। मन्नत और बारान ने बेचारगी से एक दूसरे की तरफ देखा था। अब सोच लो कहाँ से वो क्लास फेलो लानी है जिसकी दादी ने उसे 3.4 CGP पर गाड़ी गिफ्ट की है। बारान की बात में मन्नत ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा था। इन दोनों ने वहीं खड़े खड़े फैसला किया था कि वो गाड़ी पाने के लिए दादी से सारी इख्तलाफात भूल जाएंगी। 2 दिन बाद दादी उनके साथ ही यूनिवर्सिटी गई थी। वहां दादी को प्रोटोकॉल मिलता देखकर वो दोनों सोच रही थी कि वो दादी को बहुत हल्के में लेती थी। अगर इनकी दादी सेलिब्रिटी नहीं थी तो सेलिब्रिटी से कम भी नहीं थी। बस शुगर की बात यही थी कि दादी को वो गाड़ी वाली लड़की याद नहीं आई थी जिसको उन्होंने मुबारकबाद देनी थी। जब वो वापस आने लगी थी तो उसकी एक क्लास फेलो ने दादी को उनके साथ देखकर बड़ी पुरजोशी से पूछा था, ये आपकी अम्मी है? नहीं, ये मेरे अब्बू की अम्मी है। मन्नत ने हतल मकान दादी कहने से परहेज किया था, मगर मन्नत और बारान के लिए अफसोस की बात यही थी कि दादी फिर भी खुश नहीं हुई थी, ना ही उन्हें गाड़ी दिलाने की उम्मीद दिलाई थी। दादी से सारी इख्तलाफात खत्म करने का उन दोनों को कोई फायदा नहीं हुआ था। दिन पर लगाए गुजर रहे थे। जुनाइशा की वही रूटीन थी, स्कूल जाना, अम्मी को एक्सरसाइज करवाना, उनका ख्याल रखना, दादा को वक्त पर दुआ देना, डूबते सूरज को बाकायदगी से देखना, गांव के मनासिर देखकर अपनी तकालीफ भुलाने की कोशिश करना और अपने पसंदीदा सुख चैन के सूखे हुए पौधे के साथ वक्त बिताना। शुबान का चांद बिल्कुल घट चुका था। उम्मीद थी कि 2-3 दिनों बाद रमजान का चांद नजर आ जाना था। इस दिन वो तमाम काम करके सुख चैन के पास बैठी थी कि साथ वाले घर से बच्ची नमक मांगने आई थी। मगरिब के अज़ान का वक्त होने वाला था। वो उस बच्ची को नमक देने के लिए अभी डिब्बी से नमक निकाल ही रही थी कि छोटी चची ने छीलने वाले अंदाज में से डब्बी छीन ली थी। इसने हैरत से अपने खाली हाथों को देखा था। ये क्या कर रही थी तुम? मगरिब के वक्त उसे नमक देने लगी थी। उनका लहजा ऐसा था गोया वो गुनाह कबीरा करने लगी थी। चची, मगरिब के बाद देने लगी हूँ तो इससे क्या हो जाना है, भला नमक ही तो है। बीबी, तुम शहरन हो हमें पता है, लेकिन हमारे लिए ना खत्म होने वाले मिसाइल मत खड़े करो। इस वक्त नमक नहीं देते वरना घर में कभी बरकत नहीं आती। वो डिब्बी वही रखकर बाहर सहन में खड़ी बच्ची को झूठ बोलने चली गई थी कि उनके घर भी नमक खत्म हो चुका है। जुनाइशा का दिल चाह रहा था कि उनसे पूछे कि उन्होंने इसके लिए कभी हल ना होने वाले मिसाइल खड़े किए थे या वो उनके लिए हल ना होने वाले मिसाइल खड़े कर रही थी, और नमक वाली मंतक पर अफसोस ही करती रह गई थी। मगर वहां रहते रहते उसे अंदाजा हो चुका था। ऐसी कई तोहमात वहां बिल्कुल आम थी, जैसे कि बच्चे के ऊपर से गुजर जाओ तो उसका कद बड़ा नहीं होता, रात को बिल्लियां घर में लड़ाई करे तो कुछ पूरा होने वाला होता है, शाम को कमरे के दरवाजे बंद ना किए जाए तो घर से बरकत निकल जाती है, अगर कांच टूट जाए तो वो अच्छा नहीं होता, जलते चूल्हे में पानी डाल दिया जाए तो कर्जा चढ़ता है, शाम के बाद फर्श पर किसी चारपाई के पास नीचे बैठ जाओ तो कोई मरने वाला है, कौवा दीवार पर बैठकर सुबह सुबह बोले तो कोई मेहमान घर में आने वाला होता है, चाबियां बजाई जाए तो घर में लड़ाई होती है, किसी अच्छे काम के लिए जाना हो तो दही खाकर जाना चाहिए, और अगर पीछे से आवाज दे तो जिस काम के लिए जा रहे हो वो नहीं होता, और ऐसी ही कई और तोहमात। बच्ची के जाने के बाद वो दोबारा से इस पौधे के पास बैठ गई थी। पौधे ने इंतहाई शफकत से उसे देखा और उसकी सोच पढ़कर उपसरदा अंदाज में मुस्कुराया था। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद वो अम्मी के पास चली गई थी। वो कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थी। जुनाइशा ने उन्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा था। वो कमरे से बाहर निकली थी कि मंझले चचा ने उसे आवाज दी थी, कहिए चचा क्यों बुलाया है? वो जब से यहाँ मुस्तकिल तौर पर आई थी तब से वो चाहकर भी उनके लिए अपने लहजे में इज्जत और एहतराम शामिल नहीं कर पाती थी जो पहले हमेशा उसके लहजे का हिस्सा होते थे।
बेटा तुम्हें तनख्वाह मिल गई है, वो मिठास भरे लहजे में पूछ रहे थे। जी चचा मिल गई है, तमाम पैसे खर्च भी हो गए हैं, दादा की दवा लेनी थी, अम्मी की दवाई भी लेनी थी, कुछ और जरूरियात भी थी, पैसे खत्म हो गए, वो सपाट अंदाज में बोली थी। चचा इसका मुंह देखकर डर गए थे। वो उनके कमरे से निकल रही थी कि दादा ने देख लिया था और इशारे से अपनी जानिब बुलाया था। क्या कह रहे थे तुम्हारे चचा? क्या कहना था उन्होंने? तनख्वाह का पूछ रहे थे। हमेशा की तरह मैंने भी कह दिया कि खर्च हो गए हैं, जैसे जानवरों की खाल उतारने की इतनी आदत हो गई है उन्हें कि एक बार हमारी खाल उतारने के बाद उन्हें लगता है कि हर बार उतार लेंगे, वो ज़हरहंद लहजे में बोली थी। दादा उसकी बात सुनकर खामोश रहे थे। रमज़ान का चांद नजर आ गया था। राहत विला में सभी लोग रमज़ान को बेहतरीन अंदाज में गुजारने में मगन थे। दादी ने हर रमज़ान की तरह इस रमज़ान में भी ऐलान कर दिया था कि इफ्तारी तमाम लोग घर पर इकट्ठे किया करेंगे। इनके इस हुक्म पर सभी अमल पैरा थे सिवाय अख्तियार के। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो बाकी डॉक्टर्स के साथ ओटी में होता था और इफ्तारी का टाइम हो जाता था, लेकिन आज वो जल्दी पहुंच आया था और सबके साथ इफ्तारी की थी। इफ्तारी से कुछ देर बाद माँ उसके कमरे में आई थी। अख्तियार बेटा मैं कल कनाडा जा रही हूँ, तुम्हारी छोटी खाला का ऑपरेट है, तुम तो जानते हो वो वहाँ अकेली रहती है, तुम्हारे अंकल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कुछ अकेले संभालना, और मैं खुद भी इस मुश्किल वक्त में तुम्हारी खाला के साथ होना चाहती हूँ। बस तुमसे मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि तुम एक बार टाइम निकाल कर स्कूल का चक्कर जरूर लगाना। काफी दिन हो गए हैं मैं नहीं गई हूँ, रमजान की वजह से है तो बंद, लेकिन फिर भी तुम देख आना कि गार्ड वगैरह अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं या नहीं। चंद दिनों तक मैं आ जाऊंगी, फिर तो पहले की तरह मैं संभाल लूंगी। वो उन्हें इनकार करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि इसके अलावा किसी ने भी नहीं जाना था। ना बाबा ने ना ही चचा ने। अपनी स्कूल बनवा के दिया था तो एक दिन की कुर्बानी भी उसे ही देनी थी। अगले एक हफ्ते तक वो बिल्कुल वक्त नहीं निकाल सका था। आज उसे अस्पताल में थोड़ी रिलैक्सेशन मिली थी तो वो अस्पताल से सीधा स्कूल के लिए निकल गया था। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे फिर से जुनाइशा का ख्याल आया था। उसने गैर इरादी तौर पर साथ वाली सीट की जानिब देखा जो कि खाली थी। उसे समझ नहीं आती थी कि आखिर वो लड़की इसके दिमाग से उतरती क्यों नहीं थी। वो उन्हीं सोचों में गुम स्कूल पहुंचा था, मगर स्कूल की हालत काफी नाजुक थी। गेट खुला हुआ था और अंदर मौजूद बकरियां मजे से ग्राउंड में लगे घास को खा रही थी। क्यारियों में लगे फूलों के पौधे पर शायद वो पहली पार्टी कर चुकी थी, इसलिए उनके सिर्फ तने ही बचे थे। ये मंजर देखकर अख्तियार ने बामुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। गार्ड को घर से बुलाने और इसकी अच्छी खासी क्लास देने में काफी वक्त ज़ाया हो गया था। वो तब तक वापसी के लिए गाड़ी में नहीं बैठा था जब तक गार्ड ने उसके सामने स्कूल को खाली करके ताला नहीं लगा दिया था। वो अभी गांव से निकला ही नहीं था कि इफ्तारी का टाइम हो गया था। उसने एक दुकान के सामने गाड़ी रोकी थी। एक इमरजेंसी की वजह से उसे रात को अस्पताल जाना पड़ गया था और सहरी भी वही करना पड़ी थी। नतीजन वो अच्छे से सहरी नहीं कर पाया था। टाइम कम होने की वजह से उसने सहरी में 3 खजूरें और पानी का एक गिलास पिया था, जिसकी वजह से उसे शदीद भूख लग गई थी। और अब उसने भूख मिटाने के लिए सेहत और सफाई के सब असूलों को नजरअंदाज करते हुए एक दुकान के पास गाड़ी रोकी थी और दुकान वाले से समोसों की प्लेट भी ली थी और साथ ही ठंडा जूस भी ले लिया था। नीचे उतरने की बजाय वो गाड़ी में बैठकर ही खा रहा था। एसी ऑन होने की वजह से गाड़ी के शीशे बंद थे, मगर अचानक उसकी नजर विंडो स्क्रीन से पार नजर आते मंजर पर पड़ी थी। छोटी सी सड़क से चंद फुरलांग दूर तंदूर के पास वो यकीनन जुनाइशा ही थी। उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था जिससे एक लुकमा तोड़कर उसने मुंह में डाला था। उसका भी रोजा था और उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में डालकर रोजा अफ्तार किया था। जेबा माई अब तो मुझे रोटियां लगा दे, अब तो रोजा भी अफ्तार हो गया है, दादा और अम्मी को रोटी देनी है मैंने, वो रोहानसी होती बोली थी। अख्तियार उसकी आवाज तो नहीं सुन सका, लेकिन चेहरे के तासरात से उसे कुछ अंदाजा हुआ था कि वो क्या कहना चाह रही थी। ये वाकई उसका वहम नहीं था, लेकिन उसे वहां देखकर वो शदीद हैरत का शिकार हो रहा था। उसे हैरत का मजीद झटका तब लगा था जब उसने देखा कि वो तंदूर पर रोटियां लगाने वाली औरत को आटे के पेड़े बनाकर दे रही थी। जी तो फ्रेंड, कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।